آداب ناظرین کوشر خبرنامہ ہیت چھس بہ گوہر کچھ تہندس خدمتس مز حاضر تو تفصیلات پیش خبرن ہز تفصیلات سری نگر کس امرا کدلس نش رات سپدمتس گرینیڈ حملس من فوت سپدمتن ہند تعداد ووتمت دھماکس مز 35 زخمیوں من آج صبح ہسپتالس مز 20 ورش کور دگ نوینتر کن فوت سپزمت تو یدوے تہذ لاش گر وچ تت پھلے دئی ژھتہ یم پتہ تہند نماز جنازہ ادا کرنے یت مز لکن ہند اخ بوڑ تعداد موجود یم پتہ سہ پرنم چشمو سپرد لہدائی کرنے تہو ژتہ زِ رات امیرا کدلس نش گرینیڈ حملس من سپد 35 نفر چھکدر یمن مز 14 خواتین تہ شامل یل زن محمد اسلم مخدومی ناوک شخص رات زخمن ہز دگ نوینتر کن فوت سپد محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا بالحق بشيرا ونذيرا بون اینڈ جوائنٹ اسپتالس مز آتشدگی ہند واقع پیش ان پتہ اسپتالس مز آز ازکہ پہ او پی ڈی سروس شروع آمت کرنے یتھ دوران میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سند طرف ون آو زِ آرتھو مریضن باپت او پی ڈی سروسز شروع کرنے آمت یتھ دوران مریضن کنسلٹیشن یہ کرنے تاہم کانٛہہ تہ مریض یی فی الحال داخل کرنے تمو ووٚن مزید زِ او پی ڈی سروسز روزن 10 بج پہ شامن 4 بج تام جاری آج سے ہم انشاءاللہ او پی ڈی سٹارٹ کیا جو ہمارے او پی ڈی پیشنٹس ہیں وہ آج آ سکتے ہیں 10 سے 4:30 بجے تک اور آپ کی وسادت سے میں یہ بھی بولنا چاہتا ہوں جو ہمارے آپریٹڈ کیسز ہیں وہ سارے 10 to 4:30 آ سکتے ہیں ان کے لیے ہم نے ساری سویدھائیں رکھی ہیں ان کی ڈریسنگ ان کی باقی چیزیں پلاسٹرز کھولنے وہ ہمارا ڈریسنگ سیکشن بھی آن ہے ہمارا پلاسٹر سیکشن بھی آن ہے ہماری لیب آن ہے ہمارا سی ٹی آن ہے ہمارا ڈی آر آن ہے ہمارے ایکس ریز آن ہیں سارے سیکشنز ہمارے آن ہیں اب یہی ہے کہ آپریشنز ہم امیڈیٹلی نہیں کر پا رہے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ جلدی سٹارٹ کریں گے دیکھیں نا بون اینڈ جوائنٹ کے بدلے اور کوئی آپشن ہے نہیں ہماری ویلی میں سو وی آر ایٹ اٹ اینڈ انشاءاللہ اٹ ول بی ڈن ویری سون اور میں آپ کی وسادت سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کل بلاسٹ انجریز آئے ایس ایم ایچ بہت بلاسٹ انجریز آئے ان کو آرتھوپیڈک فریکچرز تھے وہ ہم نے ہمارے ڈاکٹر صاحبان ادھر سے چلے گئے اور وہاں آپریٹ ان کو کیا ایس ایم ایچ ایس میں سو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری وی آر ٹیکنگ کیئر آف ایون ایٹ دس ٹائم آرتھوپیڈک پرابلمس تھینک یو ویری مچ محکمہ ہارٹیکلچر طرف سپرے شیڈول وری 2002 جاری کرنے آمت یتھ دوران صوبائی کمشنر کشمیر سند طرف شیڈول جاری آو کرنے ات موقع پہ ڈائریکٹر ہارٹیکلچرن زِ باغ مالکن پز شیڈول مطابق باغن دوا چھڑکاو کرن تو یدوے کھانا شکایت یا سوال آسہ سہ ہیکہ متعلقہ محکمہ کین افسرن ست رابطہ کرت تمو ووٚن مزید زِ حکومت متعلقہ محکمہ طرف باغ مالکن باپت مؤثر اقدامات یوان تلنہ تاکہ تمن واتہ فائدہ ہارٹیکلچر کشمیر 2022 کا جو سپرے شیڈول ہے وہ ہم نے آج انویل کیا یہاں ڈویژنل کمشنر صاحب کے شبھ ہاتھوں سے یہ انویل ہو گیا تو یہی گزارش اپنے فارمرز سے ہیں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں یہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہر ایک فارمر تک پہنچانے کی تھرو ایچ ڈی او آفسز تو یہ ہارڈ کاپی ہم تھوڑا سا پچھلے سالوں لیٹ ہو گئے لیکن اس سال ہم نے ویلینٹ ٹائم دیا پہلے ہی دیا ایڈوانس میں اور کوشش کریں گے کہ یہ ہر ایک فارمر تک پہنچے اور فارمر سے بھی یہی گزارش ہے کہ جو رجسٹرڈ ڈیلر ہیں ان سے ہی پروڈکٹ خریدیں جن کے لیے وہ سرٹیفائڈ ہیں وہی چیز خریدیں اور اگر ویدر کے حساب سے ان کو لگتا ہے کہ کوئی سکیب کا یا اور کسی چیز کا ڈیزیز کا اثر ہے وہ اپنے نزدیکی آئی ڈی او سے صلاح لیں اسے پرسکرپشن کریں پرسکرپشن لے کے وہ استعمال کریں اس سال سرکار بڑا سخت اس میں ہے کہ کسی بھی غلط جو انسکرپلس ایلیمنٹ ہے جو ان برانڈیڈ ہے مس برانڈیڈ ہے اس چیز کو کسی بھی صورت میں ہم الاؤ نہیں کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر نظر بنائے رکھیں گے ہمارے یہ جو فیلڈ اسٹاف ہے فیلڈ عملہ ہے وہ بھی لیکن فارمر جو ہے وہ ہماری میں کہتا ہوں ہماری فرسٹ آئی وہی ہے
उसको हमसे तालमेल बनाना चाहे, अपना फीडबैक देना चाहे, जहाँ भी उसको लगता है कि कोई गलत चीज़ बिक रही है हमारे नोटिस में लाए, हम ज़रूर उसमें कार्रवाई करेंगे। इस साल पूरा डिविजनल इंतज़ामिया का सपोर्ट है इसमें इंशाल्लाह, और ग्रोवर्स को भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए और वही दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए, वही फंजिसाइड इस्तेमाल करना चाहिए जो सुप्री शेड्यूल में हो, इसके बगैर कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए इस्तेमाल। महकमे मौसमियात पेशगोयन मुताबिक वादी हिंदन मैदानी इलाकन मज रूद पेन सत बालई इलाकन मज हल्क शीन प्योमुत रात पे जारी ये जन पगह पे 12 मार्चस ताम मौसम बेहतर रोजन इम्कान वादी सत पीर पंचाल कन कैंसन पहाड़ी इलाकन मज हल्क शीन प्योमुत वादी हिंदिस मौसमस मज आमच तब्दीली दौरान दर्ज हरारतस मज तहना कमी पैद सपजम। मरकजी मामनत वाजन स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना तहत योदव बगैर मुस्तक नफरन गर बापत माली इमदाद फराहम कर तत बनगाम शांगस क्यों रोजन वल एक मुस्तक शख्स सद तरफ शिकायत कर आमत यथ दौरान तमो वोन अत स्कीम तहत तम लिस्टस मज शामिल कर आमत ताहम नामालूम वजूहातों किन मुस्तक गर वल लिस्ट मज नाव हटावन आमुत यथ दौरान अत असर रसूख थावन वालन हुंद नाव दर्ज कर आमुत। यपर वोन BDO शांगसन से अगर कंस का एतराज आसि सह हेकि मुतलका दफ्तरस मज 2 दोहन अंदर अंदर शिकायत दर्ज करित यम पत मुश्तहर कर आमतिस लिस्टस मज दोबारा छानबीन यी करने ताकि मुस्तक नफरन मिले पनुन हक। यथ ब्लॉक शांगसस मज ये जबरदस्त ना इंसाफ गरीबस सत इंसाफ मिलान गरीबस ये अयवे शेड वतमित तम ना तमन कम जन मतलब अत काबिल यम अत काबिल तमन ना थमित क्या बहस वन खतर मे दीतो प्यारती यहज आबिद सब गोन अमिस BDO सबस अमिस वन मे दीतो प्यारती यहज यमो ना दिन प्यारती क्या वन वोन BDO सबन मे दोपन सान एप्लिकेशन लिखित बह दिम प्यारती बस वापस प्यारती बुझुमन मतलब ये एप्लिकेशन है यह मे और दपान यह फेक लिस्ट अगर ये फेक लिस्ट यमो मतलब ये बनो प्यारती मे क्या दिस यमो प्यारती वुनिक दमस तामत बाकी मे गर्ज न गर्ज BDO सबस न गर्ज सरपंच सबस न गर्ज कस मे टेंशन बस इंसाफ गरीबस इंसाफ बस ये अंतदायी योत गरीबी बिल्कुल मान से डिलीवर करान जन जेन्युइन तरन गोस ये शेड तिमन दिन बल्कि आत बरकस माद परस्त लकन दिन इन जन रपस 10,000 रपस 20,000 भरान और तिम पन्न यह अजीजो अकारिबन हंद नाव करान तो रोजान बे ततन ये इसलिए पुरजोर गुजारिश कर मीडिया कि सन कत वातन ब्रोट ताय और अस देवन पन इंसाफ यह हक सह देवन। रिगार्डिंग PMAY शेड्स मैं यही बोलूंगा कि जो जितने भी वो प्रियोरिटी लिस्ट है ग्राम सभा में जो उन्होंने प्रियोरिटी दी है तो मैंने वो पब्लिश किया है राइजिंग कश्मीर में, तामिल इरशाद में। उसमें हमने 2 दिन का टाइम दिया है, अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन है वो यहाँ पे हमारे ऑफिस में फाइल करे और हम वो रिवेरीफाई करेंगे। रिवेरीफाई करके हम देखेंगे अगर वो उनकी जो ऑब्जेक्शन है अगर वो सही है तो हम उसको ड्रॉप करेंगे, अगर वो सही नहीं है तो उस बंदे को मिल जाएगा। तो क्या हम यही है कि आप लोग एक काम कीजिए, अकॉर्डिंग टू रूल्स काम करें। यहाँ पे अगर ये लोग आ जाएंगे कहानी सुनाएंगे, कहानी से कुछ नहीं होगा। अगर इनको इंसाफ चाहिए, इनको एक काम करना है, इनको वहां पे प्रियोरिटी लिस्ट देखना है। प्रियोरिटी लिस्ट में अगर किसी को ऑब्जेक्शन है वो यहाँ पे मेरे ऑफिस में आज दिन में फाइल करे। आज दिन में जब फाइल करेंगे हम रिवेरीफाई करेंगे शाम तक, उसके बाद हम देखेंगे बेस्ट सोल्यूशन। मेंढरस मं रूद आज 4 दह तह पटवारियन हुंद एहतजाज जारी, यथ दौरान तमो जमिस मं गिरफ्तार करना आमतन पटवारियन हिंज रिहाई हुंद मुतालबो कोर। तमो कोर LG इंतजामिया से मांग से पटवार खाना गछन यीन बनावन ताकि रिकॉर्ड रोजन महफूज। तह पाओ चत जे जमिस मं रेवन्यू रिकॉर्ड गब गसन किस मामलस मं क्या पटवार गिरफ्तार करना आमत ये जन अत मामलस मं मजीद तहकीकात जारी छ। सर हमारे 4 दिन हो गए हम जो हैं यहाँ पे नहीं, पूरे स्टेट में बैठे हुए हैं। हमारी डिमांड ये है कि जो हमारे साथी पकड़े गए उनको रिलीज़ किया जाए और उसके बाद सर जो हमारे
रिकॉर्ड है उसके लिए पटवार खाना जो है बनाया जाए ताकि हमारे जो ये है रिकॉर्ड वो महफूज रहे। उसके बाद सर जो हमारा पे ग्रेड है उसको बढ़ाया जाए। कोई भी डिपार्टमेंट है आप देखें उन सबकी पे जो है ज़्यादा है, हालांकि वो 10 से लेकर 4 बजे तक काम करते हैं, तो हम जो है सुबह आते हैं और रात के 10 बजे तक बैठे रहते हैं, अपने डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, तो हमारी पे इतनी है कि दूसरे डिपार्टमेंट के पीएन से भी कम है। तो उसके बाद सर हम जो है रिक्वेस्ट करते हैं अपने अफसरान से कि हमें जो है हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए और इस तरह से जो है हमें हरासा किया जाए ताकि हम अच्छी तरीके से जो है वो काम करें। आज हमारा चौथा दिन है। डिमांड हमारी तो पूरी यूटी जम्मू कश्मीर के जितने भी पटवारी हैं आज 4 दिन से अपनी डिमांडें कर रहे हैं, जो हर आदमी हर अफसर ने बाला सुन रहा है। तो उनमें से पहली डिमांड तो ये है कि हमें भर्ती किया गया बतौर पटवारी, लेकिन हमारे बैठने के लिए कोई पटवार खाने कोई इकट्ठे बिल्डिंग नहीं है, जिससे हमारा रिकॉर्ड जो है वो सेफ नहीं है। दूसरी डिमांड ये है कि हमारा ग्रेड जो है वो 2400 है, हम करते हैं कि हमारा ग्रेड जो है 2800 किया जाए। तीसरी डिमांड ये है कि हम काम करते हैं और काम करने की वजह से अगर कहीं कोई रिकॉर्ड जो है वो हमसे मिस हो जाता है या हो गया है, उसकी जो सानी कापी दूसरी कापी वो महफूज खानों में होती है, उसकी तहकीकात करने के बाद ही हमें जो है हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाए। और चौथी डिमांड हम ये करते हैं कि तहकीकात के लिए हमारे ही डिपार्टमेंट के जो है वो ऑफिसरान बाला होना चाहिए, ना कि दूसरे डिपार्टमेंटों को तरजीह दी जाए और हमें वहाँ पकड़ के उनके हवाले किया जाए। पांचवी हमारी जो है डिमांड ये है कि हम 2002 बैच के जो पटवारी भर्ती हुए हैं, आज हमारी सर्विस 20 साल हो गई है, 21 साल हो गई है, लेकिन आज भी पटवारी हैं। 2008 में हमने नायब तहसीलदारी और तहसीलदारी एग्जाम पास किए हैं, लेकिन आज काम जो हम कर रहे हैं वही एक पटवारी का कर रहे हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 20-30 गलदावर की पोस्टें खाली हैं, तो हमें जल्द अज जल्द प्रमोट किया जाए। जम्मू कश्मीर में सयाहतस पोचर दिन बापत योदो महकमे सयाहत तरफ प्रेत का मुमकिन कोशिश करने येल जन फेस्टिवल तो दोयमे रंगन प्रोग्राम मुनक्कद करने तत जम्मू कश्मीर मज मुख्तलिफ इलाकन मज मुख्तलिफ खूबसूरत जाय यम सयाहती एतबार मशहूर मगर सयाहत किस नक्शस मज अन्न जरूरत। यी खूबसूरत जाय जिले डोडा किस मारमत इलाकस मज ये वाटरफॉल वुचन बापत मकामी लुकन हुंद बोड़ तादाद यवन तत लुको तरफ इंतजामिया अपील करान वोनमुत यह जाय गछ सयाहत किस नक्शस मज इन ताकि अम सत मिले मकामी लुकन फायदे। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं वसीम गत्तू। इस वक्त हम गोवा मरम्मत के रास्ते पे मौजूद हैं और रास्ते में कुछ खूबसूरत तस्वीरें हमको दिखी। हमने सोचा आपको भी हम ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि गोवा मरम्मत के रास्ते में किस तरह की खूबसूरत तस्वीरें हैं। ये झरना कितना खूबसूरत है और कहीं ना कहीं जो भी इस रास्ते से गुजरता है जरूर यहाँ पे रुकता है, यहाँ पे फोटो लेता है। मेरे साथ हमारे पत्रकार हैं विकास, इससे भी बातचीत करते हैं क्योंकि यहीं के रहने वाले हैं। विकास, क्या बताना चाहोगे? जिस तरह से हम देख रहे हैं काफी दूर से पानी गिरता है, एक बहुत अच्छा वाटरफॉल बना है यहाँ पे, मगर कहीं ना कहीं यही चीजें देखने को मिलती हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से टोटल इस इलाके को इग्नोर किया गया है। जिस तरह से हमने देखा, पीछे भी देखा हमने कि इलाका काफी ज्यादा खूबसूरत है। क्या बताना चाहोगे इस हवाले से? जी वसीम, मैं आपको बता दूं ये नाला जो पानी आपको पीछे दिख रहा है गिरता हुआ, ये देदनी नाला है और ये काफी पानी यहाँ पे फ्लो आता है और गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे लोग जो है फोटो खींचने भी आते हैं क्योंकि यहाँ पर लोग जो है एंजॉय करने आते हैं। और इसी रास्ते पे आप देखेंगे जहाँ पर ये हाईवे है और जो पूरे मरम्मत को कनेक्ट करता है, लेकिन जब यहाँ पानी ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पर निकलना बहुत लोगों को मुश्किल हो जाता था और काफी बार डिमांड भी की है यहाँ के लोगों ने कि कम से कम पुल हो जाए, यहाँ पर पुल बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए छोटा सा प्रोजेक्ट है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पुल यहाँ पे बनना चाहिए, ज्यादा पैसे लगेंगे नहीं पुल को, क्योंकि हम देख रहे हैं छोटा सा ही जो है एरिया पुल के लिए है यहाँ पे, क्योंकि
छोटा सा एक एरिया है, छोटा एरिया में ही पानी गुजरता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को किस तरह का कदम इस पे उठाना चाहिए? देखिए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन इन सब चीजों को देखती और ध्यान देती, जिस तरह से एक वाटर फॉल जो है हमारे मरमत में है और पूरे डोडा में आप देखेंगे कि इस तरह से इतनी ऊंचाई से पानी नहीं गिरता है, और ये पानी जहां से आता है ये देदनी का एरिया है जहां से ये पानी आता है, और इसी पानी को यहाँ के लोकल लोग भी पीते हैं। और आसपास अगर इसको सही तरीके से मेंटेन किया जाए और सही तरीके से यहाँ पर बनाया जाए तो यहाँ पर टूरिस्ट भी आएंगे, और डोडा के जितने भी लोग हैं या आसपास के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं वो भी गर्मियों के दिनों में यहाँ पर एंजॉय करने आएंगे, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती और जो यहाँ के पिछले 70 सालों से लोगों ने देखा है कि जो बैकवर्डनेस, और अब जो है यहाँ पर सुध महादेव टनल बनने जा रहा है जहाँ काम भी लगा हुआ है, लेकिन इन ऐसी जैसी जगहों को। एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे रहेगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी यहीं के रहने वाले हैं, उसके अलावा क्यों इस इलाके को इग्नोर किया गया? क्योंकि खूबसूरती काफी ज्यादा देखने को मिली, हम देख रहे हैं कि रास्ते की बद से बदतर हालत है, अभी भी 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं और इस तरह की हालत देखने को मिल रही है। इग्नोर क्यों इस इलाके को किया गया? क्योंकि आप यहीं के रहने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी हमें बात करनी चाहिए, और अगर वो यहाँ के लिए सही तरीके से देखते तो ये इस तरह की हालत यहाँ की लोगों की नहीं होती। कम से कम हम सिर्फ ये प्रमोट करने की बात कर रहे हैं कि अगर इतना बड़ा वाटरफॉल है हमारे पास तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को खुद यहाँ पर देखना चाहिए। और यही नहीं, ये जिस गाँव से ये पानी आता है वहां पर एक माता का मंदिर है और आसपास ऐसे स्पॉट है, यानी आप भद्रोहा से भी बेहतर देख सकते हैं। वहां पर टूरिस्ट आ सकते हैं, यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, अपना गर्मियों के दिनों पे यहाँ घूमने भी आ सकते हैं, सही स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखेगा। जो भी लीडर यहाँ पर आए सिर्फ सपने दिखाए उन लोगों ने। और जब भी आपने रोड की बात की थी, जब भी यहाँ पर रोड का काम चलता है इतना फर्जी रोड पे यहाँ पर मेंटेन किया जाता है, जो भी ब्लैक टॉप होती है यानी ऐसे लपाई टाइप जैसी होती है और कुछ दिनों के बाद वही उखड़ जाती है। शुमाली कश्मीर कुपवार किस नगरी इलाके लुको तरफ शिकायत करने आमज इलाकस मज कदल नास्त किन लुकन सठा मुश्किल वेतरीन पेवन तो योदवे आज ब्रो शुरा वरी कदलस पे कम शुरू आय करने ताहम कदल आज नामुकम्मल या दौरान लुक आवलनिस मन हन आमद। लुकन हुंद वन दरियावस मज आबुक बहाव ज्यादा आसनस दौरान तिम बाकी इलाकस सत कटाव रोजन। तमि हवाले युदवे बार बार इंतजामी नोटिस मज तैयार नाव ताहम आन लुकन हिंद मुश्किल दूर कर। यह कदल नगरी हुंद यह काल पे पेंडिंग पेमुत तो यह बनान वो तान कहें ध्यान दिवान बल्कि यम ब्रो गो बचस गुजरिया ये थोप दरियावस यमी जाए ये कदलस नश ये नाय मज यमी जाए गुजरिया बच वन तान दुत कदलस दखल ये गो 2005 पे चलान तम पे गई ठटी खड़ा ठच पे गई कह करा ये सन बच तम पे निम दरिया क्रॉस कर अपोर स्कूल खतर तरन ये नाय मज वनस प्रेजेंट यमो गो परसो हादसा ये फोटो बचस या गवर्नमेंट कह ध्यान दिवान पान वो तुम रिस्क नाय मज अपार यपर तरन खतर बिल्कुल ये गवर्नमेंट कह ध्यान दिवान सन अपील गवर्नमेंटस कि जल्द अज जल्द ध्यान ये है कि जो ये ब्रिज जरी यूनिवर्सिटी जम्मिस मज कृषि विज्ञान मेलस मज शिरकत करने बापत कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ तरफ करीब 50 किसान मेलस मज शिरकत करने बापत रवाना करने आमत। यो दौरान वन आव शिरकत करने वाले किसान मेल काश्तकारी मज जदीद टेक्निक इस्तेमाल करने को मौका। मंडी से हूँ। हम किसान मेले 2022 के लिए जा रहे हैं जम्मू कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से, और जहाँ पे वो यूनिवर्सिटी में हमें जब विज़िट करना है वहाँ पे रुकेंगे हम और खेती बाड़ी के बारे में जानेंगे, कोई नए तरीके अपनाएंगे हम, और या वापस आके हम यहाँ पे पुंछ में जितने भी हमारे वो तरीके हैं सबको बताएंगे, खुद भी सीखेंगे और सबको बताएंगे क्या करना है, कैसे खेती बाड़ी करनी है। और हम इस डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रगुजार हैं KVK पुंछ का। सर मेरा नाम मुश्ताक अहमद। ये जो आज हम कैंप पे जा रहे हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से, कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से ये जम्मू के लिए हमें भेजा जा रहा है। तो जम्मू यूनिवर्सिटी चट्ठा में हमें पहुंचना है वहाँ पे, और ज़मींदारी के मुतालिक जितने भी
नित नए नए तरीके हैं वो वहाँ पे हमें सिखाए जाएंगे। तो इस मकसद के लिए हमें वहाँ पे भेजा जा रहा है। तो जिसके लिए यहाँ पे महकमा ऑफ एग्रीकल्चर ने यहाँ पे गाड़ी का भी बंदोबस्त किया है हमारे लिए, और रास्ते में खाने पीने का जो भी रहने सहने का इंतज़ाम है वो भी साथ में किया है। और काफ़ी सारे फार्मर जो हैं यहाँ पुंछ से वो जम्मू के लिए रवाना हो रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का और जो इनके चीफ हेड हैं अजय गुप्ता साहब, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एंड द इमिनेंट साइंटिस्ट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस मेले का मकसद यही है कि फार्मिंग के जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है, लेटेस्ट सीड्स है, लेटेस्ट फार्म मैकेनाइजेशन के इक्विपमेंट्स है, उनका डिस्प्ले हो रहा है इस किसान मेला में। तो इस ज़ुमन में कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ की तरफ से हमने आज एक 50 फार्मर का जो ग्रुप है वो तैयार किया है अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ डॉक्टर अजय गुप्ता। हम ये किसान इस मेले में पार्टिसिपेशन के लिए जा रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि ये किसान वहाँ पे सीखे, अपनी आंखों से देखेंगे कि नाज़रीन इस वक्त कोशर खबरनामान तो वो प्रोग्राम 5 का 5 पेश करें इशफा गौहर में दी इजाज़त। खुदा सवाल।